রাজু, রাত কিন্তু অনেকটা হয়ে গেছে। আজকের এ রাতটা বরং আমাদের বাড়ি থেকে যা ভাই। বড় রাস্তার বাঁশবাগানটা কিন্তু একদম ভালো না। ওখানে রাতে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আরে, রাখ তোর ভূতের গল্প। আমার কাছে টর্চ আছে, আমি ঠিক চলে যাব। তুই কাল সকালে আসিস। চলি রে। রাজু হাঁপাতে হাঁপাতে চরম আতঙ্কে। কে কে ওখানে? প্লিজ আমার পিছু ছাড়ো, আমাকে ছেড়ে দাও। কতদিন হয়ে গেছে মানুষের রক্ত খাইনি, আজ তোর রক্ত খাবো। রাতের নিস্তব্ধতা, ঝিঝি পোকার ডাক, দূর থেকে পেঁচার ডাক ভেসে আসছে। একটি পুরনো সাইকেলের চেইনের একটানা চোরচোর এবং প্যাডেল ঘোরানোর শব্দ। রাতের তৃতীয় প্রহর, আকাশে চাঁদটা এমনভাবে ঝুলছে যেন কোনো মৃত মানুষের রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ। পুরো এলাকাটা যেন শ্বাস আটকে বসে আছে। এই জনশূন্য কাঁচা রাস্তায় শুধু একটাই জিনিস এগিয়ে চলেছে, একটা পুরনো খড়খড়ে সাইকেল, আর তার সঙ্গে আজ তার বউ। সাইকেলের চেইন হঠাৎ সজোরে শব্দ করে আটকে গেল। টায়ার মাটির সাথে ঘষা খাওয়ার শব্দ। ধুর ছাই, এখন এই মাঝরাতেই তোর খারাপ হওয়ার ছিল? সারাদিন ঠিকঠাক চললি, আর এখন তোর যত নাটক। রামু নিচু হয়ে সাইকেলের চেইনে হাত দিতেই চমকে উঠল। এ কি, এত ঠান্ডা কেন? লোহার চেইনটা বরফের মতো ঠান্ডা। সে হাতটা ঝটকা দিয়ে সরিয়ে নিল। চারদিকের নিস্তব্ধতা চিরে একটা ভারী, ঘষা খাওয়া গলার আওয়াজ খুব কাছ থেকে ভেসে আসে। এ খোকা, আমারে একটা দেশালাই দিবি? বিড়িটা নিভে গেছে আমার। শেরুর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ধুকপুকানি বাড়তে থাকে। সাসপেন্স মিউজিক শুরু হয়ে উঁচুতে ওঠে এবং হঠাৎ থেমে যায়। রাস্তার পাশে ঝোপের কাছে একটা লোক বসে আছে। লম্বা, রোগা, মাথায় পুরনো গামছা জড়ানো। অন্ধকারে তার মুখটা অস্পষ্ট, যেন পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না। আরে বাপরে, কে তুমি? আমার তো জান বের করে দিয়েছিলে। এত রাতে এখানে বসে আছে? ঘর সংসার নেই নাকি তোমার? ঘর ঘর তো তাদের থাকে যাদের ফেরার জায়গা আছে। আমরা তো কবেই সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। কি বলতে চাও? সোজা করে বলো না। লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার হাঁটা চলা অদ্ভুত, যেন পা মাটি ছুঁটছে না। হাওয়া হঠাৎ বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল। খোকা, তুমি একটা ভুল করে ফেলেছ। এই রাস্তাটা গ্রামে যায় না। এই নাও, আর আমাকে যেতে দাও। দেশলাইটা লোকটার হাতের এপার ওপার দিয়ে গলে মাটিতে পড়ে গেল। শেরুর গলা শুকিয়ে এল। তুমি ধরতে পারলে না কেন? কারণ আমরা ধরি না, আমরা শুধু নেই। একটা কথা মনে রেখো খোকা, পিছনে ফিরে তাকাবে না, কারণ যে পিছনে তাকায় সে এখানকারই হয়ে যায়। রামু সাইকেল ফেলে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল। তার পিছন পিছন সেই অশুভ হাসিটা যেন তাড়া করতে লাগল। পিছনে দেখব না, পিছনে দেখব না ভাবতে ভাবতেও মানুষের মন তো ভয়ে সে এক মুহূর্তের জন্য ঘাট ঘোরাল না। एक शांत शहर जो संकरी गलियों और मध्यम होती स्ट्रीट लाइट से घिरा हुआ था। वहाँ रातें एक ऐसे नियम का पालन करती थी जिसे किसी ने कभी सवाल नहीं किया। सूर्यास्त के बाद कदमों की आहट गायब हो जाती थी, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, खिड़कियाँ ढक दी जाती थीं और आधी रात तक सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थीं, क्योंकि आधी रात को कोई इंतज़ार करता था। वो हर रात एक ही जगह दिखाई देती थी, एक सुनसान चौराहे पर जहाँ 4 खाली सड़कें मिलती थीं। एक औरत फीकी पड़ चुकी दुल्हन की पोशाक पहने हुए, लाल रंग जो एक ही जगह दिखाई देती थी, एक सुनसान चौराहे पर जहाँ 4 खाली सड़कें मिलती थीं। एक औरत फीकी पड़ चुकी दुल्हन की पोशाक पहने हुए, लाल रंग जो समय के साथ धुंधला हो चुका था। वो चलती नहीं थी, वो खड़ी रहती थी, पूरी तरह स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो जो कभी नहीं आया।
शुरुआत में लोगों को लगा ये बस एक कहानी है, बच्चों को डराने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए। लेकिन फिर किसी ने उसे देखा, चौराहे पर खड़ी, अचल, खामोश। उसके आसपास की हवा अजीब लगती थी, भारी, ठंडी, और उसके पास की रोशनी टिमटिमाती थी। अगली सुबह वो इंसान गायब था। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। वो बस गायब हो गया। उसके बाद शहर बदल गया। लोगों ने उस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, रात में बाहर निकलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उस दिशा में देखना भी छोड़ दिया। लेकिन हर रात वो वापस आती रही, उसी चौराहे पर खड़ी, इंतज़ार करती हुई। दिन बीतते गए और धीरे धीरे कुछ नया होने लगा। वो हिलने लगी, चलना नहीं, मुड़ना, बहुत धीरे धीरे। हर रात एक अलग सड़क की ओर, जैसे चुन रही हो, देख रही हो, फैसला कर रही हो। और जिस रात वो किसी सड़क की ओर मुड़ती, उस दिशा से कोई गायब हो जाता। न कोई आवाज़, न कोई संघर्ष, न कोई निशान, सिर्फ खामोशी। अब पैटर्न साफ था। वो इंतज़ार नहीं कर रही थी, वो चुन रही थी, एक एक करके, रात दर रात, जब तक कि शहर में कम रोशनियां बची, कम घर, कम लोग। लेकिन फिर कुछ और बदला। एक रात वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, स्थिर, खामोश, उसी की तरह कपड़े पहने हुए। अगली रात 2 थी, फिर 3, फिर और, हर एक दूसरी के पीछे खड़ी। चौराहे पर एक खामोश कतार, सब इंतज़ार करती हुई, सब अलग अलग दिशाओं में देखती हुई। अब लोगों को समझ आने लगा, वो सिर्फ चुन नहीं रही थी, वो कुछ बना रही थी, एक जमावड़ा। उन लोगों की कतार जो कभी लौटे नहीं। और हर रात ये कतार लंबी होती गई, जब तक कि पूरा चौराहा स्थिर आकृतियों से भर नहीं गया, अंतहीन। एक रात केवल एक घर में रोशनी बची, जीवन का आखिरी निशान। आधी रात को वो औरत मुड़ी, उसी की ओर। उसके पीछे की कतार हल्की सी हिली, जैसे कुछ तय हो गया हो। घर के अंदर की रोशनी टिमटिमाई, एक बार, 2 बार, और फिर बुझ गई। अगली सुबह शहर खाली था, न लोग, न कोई हलचल। न कोई आवाज। सिर्फ चौराहा बचा था, और हर रात ठीक उसी समय वहां आकृतियां खड़ी दिखाई देती थीं, खामोश, अचल, अलग अलग दिशाओं में देखती हुई, इंतजार करती हुई। जैसे वो शहर अंत नहीं था, बस एक और पड़ाव था, क्योंकि कहीं और, किसी ये है रामलाल, गांव का एक। इस साल भी फसल सूख गई, पूरा खेत जल गया, कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, कब तक ऐसे जीऊंगा? बच्चे भूखे हैं, खेत सूखा है, अब मेरी हिम्मत टूट रही है। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को आधुनिक खेती के तरीके बताए। दोस्तों, जैविक खाद का इस्तेमाल करो, कम पानी वाली फसल उगाओ और फसल बदल बदल कर बो, तभी फायदा होगा। गांव वाले हंस पड़े, पर रामलाल ने ध्यान से सुना। रामलाल ने ठान लिया, अब वे गरीबी से हार नहीं मानेगा। मेरी मेहनत रंग लाएगा, अब मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होगा। ये कहानी हमें सिखाती है, मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेहनत और सही ज्ञान से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।